My screen is visible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay, so now we can start. Yes, sir. Okay. So till now, whatever I have covered, any confusion? No, sir. Okay. So we are good to go. Okay. So first of all, basically that some data that EDA and some stats portion is still pending. So let's see whether we can able to start the linear regression or not, because that is the portion that is left on stats or maybe some data preparation, that is all going to required in linear regression, right? So let's see whether basically we can start linear regression today itself or not. I don't think so, because almost half an hour basically is that we have not used for the classes, right? So let me start here. Recording is already done. So guys, what we were covering in last lecture? Shipra, can you tell what was the topic we were covering in the last lecture? Sir, ggplot. So ggplot almost got over, right? Yes, sir. Almost. Okay. So and as and when basically required, we will revisit, right? Okay, sir. Not an issue. Okay. And you people can always have a choice to connect one-to-one also. You know my mobile number. So if I am free and your problem is really that you are not getting anything, then you can connect on video call also, right? Okay, sir. So today that what I supposed to start, I start that data preparation module, right? And the data preparation module, some sort of EDA part. So let me just start quickly, and I'm going to cover some of the topics over here. R programming. And guys, I'm going to prepare the data preparation module. I'm going to start with this data preparation module. So guys, can you quickly confirm my screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So one more thing, guys. Since we are not controlling the sense that you have to raise the hand, because number are very less, so you take the advantage of this opportunity, and as and when you have any query, please just use your mic and start asking the questions. But you have to make sure the question that you are asking at any point of time, that should be related to that context only. If you are asking something else that is covered 2-3 days back, then that will take you the whole take you not only you, but that whole batch basically will be on out of track, right? So guys, you let me know what is the set W and get W command is clear to all of you. Guys, say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Set W for setting the working directory, right? Yeah, yeah. And get W for Get working directory. Get working directory. So this is basically I'm just if I'm going to type get WD. So this is basically nothing but basically I'm getting the current working directory. I'm working in the folder R programming, that is parental folder as IM. This IM parental folder is this, and ultimately this is F folder. And let's say I'm just changing into EDPS. Let's say I'm changing this into EDPS. So this concept is clear, guys. Why we are using double slash? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me run this also and get W basically. So ultimately, what I have done it, that my now current working directory where my R program is running, that is get WD. Okay. Yes, Yes. sir. So now, see, now I'm going to use I'm going to use the marker. So please look at over here. This is clear to all of you. This is visible to all of you. Yes, sir. We are Yes, going sir. to use read CSV function through which Yes. basically we are going to read the Excel sheet. Yes, sir. Excel sheet or CSV sheet. Okay, CSV is comma separated file, comma Yeah. separated values. Okay, so generally most of the time the data, 99% of the time data will be from Excel sheet only. And what happens sometimes basically, let's say what happened. In fact, I already told you there are three or four roles in the data scientist, data engineers, data analytics, and data scientists. Okay, so somehow data scientists and these are overlapping jobs.
and the data engineer basically is overlap with the data analytics initial phase. Okay, right? So sometimes basically that your job may be that extracting the data from a particular website. So that altogether a different skill is required. Okay. So sometimes people basically that wants that you can, in fact, they will ask you, can you extract the data from the website? So in that case, what you can do, guys, that once you learn this data analytics job, then literally you can develop this skill also. Okay, right? So right now, what I am just focusing on the data analytics and data scientist role. So guys, can you see over here at line number? Let me just see it over here. Line number 9. What I'm trying to do over here? At line number 9, what I'm trying to do over here, I'm trying to read the file stored at this location. So within the DPS folder, this file is also stored. So just only for that, what I will do, I will write read.csv function. Within this, basically, I'm going to see the file name always a string. File name is as a string. So basically, we have to give the that full basically path, full name. So bank full, you can see over in the name of the file .csv. So let's say if I run this, can you see over here, guys? Ankur, are you there? Seema, are you there? Yes, sir. Yes, sir. So, so I have run this command. Okay. Yes, So sir. this command basically is giving this. So this CSV is giving the message. This is comma separated file, right? Yes, sir. Okay, but this is not a comma. But the output basically we can see here. This is not a comma separated file. This is looks like a values are separated with the semicolon, right? Yes, sir. So what happened basically? If we go in help of read.csv, if we go the help on read.csv, how we check the helps? This is clear to all of you now Yeah, by this question mark. symbol. Question mark. Okay, so if we go over here, that you can see over here, this is separator. Yes, sir. And this is read.table. So read.table is also basically what happened. This table live structure. There is a family of basically that functions. Lot of functions are there. So in that basically we are using this read.csv. So in that you can see over a separator is what? By default they have given a comma. So that we can always change, right? So we are changing with this. Okay. Just a minute, guys. Just a minute, guys. And not only this, basically we are going to use some other library as well. So what I am going to do over here? Yes. Can you see over here, guys? At line number 14. Yes, sir. So what I will do over here, I am going to work like this: read.csv. Okay. In fact, last time basically whatever run this command. So this is basically I have just copied. Okay. Now separator is equal to the moment basically you type some letter over there, automatically it will pop up. You just select it and enter. Okay. This is done over here. Now separator basically instead of this, what you want separator, we want separator colon, right? Yes, sir. Yes, sir. Now if we run this, what will happen? Can you see? This looks like much more logical. Under the age column, these are the value. Under the job column, these are the value. Under the marital status, these are the value, right? Okay. Say yes or no, guys. Yes, sir. All, Yes, sir. okay. Now, now let me just a minute, guys. Just a minute. What is this? Okay. Now see over here, guys. I'm going to use the dplyr package. So obviously this command is clear to all of you. I have run the dplyr package. Now see, guys, there are two functions. One is glimpse, one is str. One is str. In that you're supposed to pass the data frame, and one is glimpse. Okay. Okay, almost doing the same thing, little bit difference, and ultimately the objective of those functions basically is what? To tell the schema. Schema basically means how many columns are there in your data frame, how many rows are there in your data frame, what is the type of this column, what is the type of this column, what is the type of this column, some information. And not only this, basically they will also give basically what are the values stored. Some column values are initially, some values basically they will display, because sometimes what happens that your database might having a thousands of rows, 2,000 of rows, maybe hundreds of columns. So all we can't fit in a single screen. So they will give some some values, right? Yes, sir. So let me run this basically. In fact, I have not run this, otherwise it will be a problem. So I basically I have run this till now, but that value is not stored in the variable. Now I'm going to store the value in the variable BD. So BD is now my data set,
and let's say I want to know the first 2 rows. This head basically is giving the first 6 rows as an out, first 6 or 5, I think 5 or 6. I have to check it. How many will basically you can सीमा कितनी वैल्यू देख सकते हैं हम लोग उसमें से? सॉरी सर, किसमें से? हेड फंक्शन से हम लोग डेटा फ्रेम की कितनी वैल्यू देख सकते हैं? सर 6 देखते हैं हम, ऊपर की स्टार्टिंग की 6 वैल्यूज आती हैं। 6 वैल्यूज आती है ना? यस सर। जस्ट मिनट देख लेते हैं। 6 you can see over here, okay? So let's say if I run this, what will happen? And you always have a choice to give the values, right? यस सर। Can you see over here, guys? How many rows are there? 1 and 2. Okay. Right. Now I am going to use glimpse function. Glimpse function you see over here. Glimpse function is giving the schema. I told you, na, schema basically means what? It will tell you how many rows, how many columns, what is the type of each column, integer, character, and some possible values that it will display to us, right? And this is a function of deep layer, and structure basically is a function of base library, right? So str bd. So this is clear, guys. This is clear. Difference is clear. Yes, sir. Yes sir. So it's our choice. If you feel like basically that earlier one is good, you can use that. Otherwise, you can use this. But I personally recommend you just go with this, that earlier one. Otherwise, you have the choice, right? Now that we have already done, this is already done. Yes, guys. Now we have already seen the table function, right? Table function का purpose क्या है? सीमा बताओ. सर टेबल, सर आपने लास्ट क्लास में बताया था टेबल। यार ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी भी डेटा सेट से अपन इसको यस यहाँ frequency check करने के लिए, right? यस। How many category and what are the how many times that value has been occurred in that particular column, right? Yes. So let's say if I am going to write table function, and this is basically that data frame name and then dollar, automatically it will come like this. Let's say education. If I hit this, can you see over here? Primary, secondary, tertiary, these many basically categories, and there is one more category that is unknown. Sometimes what happens basically when someone basically from the government agency comes to you, visit to your house to do some survey. Sometimes what happens basically you might say that let's say someone is asking that education of your mother. So you might be maybe knowing, may not be knowing. So you may say unknown, right? So this is unknown value. So unknown value basically that sometime what happened that I am writing like this unknown. Seema might writing like this, and let's say the Chipra is writing like NA. Ankur is writing like null. So all possibilities are there, right? So what happened when you're reading the Excel sheet, you have to tell to the compiler, tell to the R कि ये unknown का मतलब क्या है, इसको null value मानना है या नहीं मानना है. ठीक है, सीमा समझ में आ गया नहीं आ गया? Yes sir. Yes sir. तो दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखो ये एक्सेल शीट है, ठीक है. इस एक्सेल शीट में मान लो डेटा कलेक्ट किया, मान लो यहाँ पर किसी की एज थी, वहां पर हमने एज पूछी इस बंदे से, उसने बोला मेरे को पता नहीं. सो अब वी विल से अननोन या क्रॉस कर देंगे. बहुत सारी चीजें होती हैं. जो भी होती है एक पर्टिकुलर टेबल में एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, या एक या दो वैल्यू जो भी होंगी उसमें लास्ट में रिमार्क लिख के आ जाएगा कि भैया स्टार का मतलब आपको समझना है मिसिंग वैल्यू, राइट? ओके. अननोन का मतलब समझना है कि नॉट अवेलेबल मींस मिसिंग वैल्यू, राइट? ओके. So this is Excel sheet given to you. Now you are reading this Excel sheet into R. So now before reading into R, you have to tell to the R कि missing value को कैसे interpret करना है. Because computer is that is not knowing anything. Computer को बताया था ना dump है, उसको कोई knowledge नहीं है. आपको बताना पड़ेगा कि null value का मतलब क्या है, right? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि डेटा सेट मैंने कलेक्ट किया और मैंने सपोज करिए मैंने अननोइंगली जानबूझ के लिए एन लिख दिया मैंने. अब ये डेटा सेट आप लोगों को पास आता है तो आप पूछोगे मेरे सर एन का मतलब क्या है, तभी इंटरप्रेट कर पाओगे आप. इन द सेम में जब कंप्यूटर पढ़ रहा है तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा भाई इसका मतलब क्या है, राइट? दैट कमांड इज कमिंग ओवर हियर. सो रीडिंग टाइम इटसेल्फ यू कैन स्पेसिफाई इसका मतलब क्या है. देखिए जरा पहले इनफैक्ट इससे पहले देख लो जरा टेबल जॉब को भी देख लेते हैं जरा. जॉब कॉलम में कितनी कैटेगरीज हैं? कैन यू सी ओवर हियर?
एंड अननोन कितने हैं? 280 नंबर है अननोन में, इसकी कोई कैटेगरी पता नहीं हम लोगों को, राइट? ओके Yes. सर। राइट, यस सर। हाँ तो बोलो, तभी Yes, समझ में sir. आएगा मेरे को। कोई ना कोई वॉलंटरली बोलते रहा करो, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए। अब देखो जरा, सीमा मेरे को ये बताओ, ये रीड डॉट सीएसवी में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एक तो फाइल नेम दे दिया हमने, यस सर। सेपरेटर दे दिया, यस सर। अब हम लोग तीसरा आर्गुमेंट देंगे एनए डॉट स्ट्रिंग, यस सर। जिससे आर्गुमेंट एन डॉट स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि भैया जहां पर भी पूरी एक्सेल में जहां भी अननोन लिखा मिले, उसका मतलब मान के चलना मिसिंग वैल्यू है, ओके। ठीक है। और मिसिंग वैल्यू को आर हमेशा दिखाता है एनए से, ठीक है। ठीक है, ओके सर। क्लियर? तो जब Yes. सिंपल सी बात है कि एक एक्सेल सीट आई, वहां पर किसी कॉलम में उसे अगर अननोन मिलेगा तो क्या करेगा? इट कंप्यूटर विल रिप्लेस दिस अननोन विद एनए वैल्यू, राइट? सर कहीं पे ब्लैंक वैल्यू भी तो हो सकती है ना, जहाँ पे कहीं कोई वैल्यू ही ना नहीं, हो। हाँ, बहुत सारी चीज हो सकती है। सपोज करो कि मैंने तो क्या कहते हैं, अननोन लिखा मिसिंग वैल्यू के लिए, आपने मान लो क्रॉस कर दिया, राइट? तो उसके में क्या करोगे? एनी डॉट स्ट्रिंग में यहाँ पे जो दे रहे हो ना, अगर देखा जाए तो अगर मैं कह सकता हूँ ये वेक्टर है सिंगल वैल्यू, यस सर। कैन आई राइट लाइक दिस मल्टीपल वैल्यू? कि भैया एनी डॉट स्ट्रिंग में नल मानना या तो ये हो या अननोन हो या कुछ डॉट हो, उसको सबको क्या मान के चलना है? आपको अननोन मान के चलना है, राइट? ठीक है। ओके। समझ आ गया? और सीधी सी बात है, जब डेटा आपके पास आएगा तो डेटा डिक्शनरी भी आती है, उसमें बता देगा कि क्रॉस का मतलब क्या है, अननोन का मतलब क्या है, राइट? समझ आ गया? ओके सर। ठीक है। अब देखो जरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीड करते समय यार को बता रहा हूँ भैया इसको अननोन मानना। अब अननोन मान लिया मैंने, तो क्या कर रहा हूँ देखो जरा, मैं अब मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ, तो बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां पर अननोन था वहां पर एनए आ गया होगा, राइट? ठीक है। अब मुझे चेक करना है, देखो जरा, मुझे चेक करना है कि सपोज करो मुझे टेबल वाली वैल्यू में 288 वैल्यू ऐसी थी जो अननोन थी, राइट? जॉब वाले में यस सर। बीडी डॉलर जॉब। जॉब था, ये देखो। अब इसमें देखो 288 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आइडली एनए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था सर। तो टेबल फंक्शन में क्या है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये एनए को इंक्लूड नहीं करता है। अगर आपको इंक्लूड कराना है तो ये वाली कमांड लिखोगे आपका, देखो ये एक्सक्लूड, ये वाली यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, ये वाली कमांड। जब इसको करोगे देखो दोनों का आंसर देखना जरा। अभी देखिए एवरीथिंग इज देयर आफ्टर 1303 there is one more category, NA value will come over here, you can see over here the answer. Can you see over here? यस सर। यस सर। This is clear? तो बाय डिफॉल्ट टेबल क्या करता है, नल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी नहीं बताता है। अगर आप जानना चाहते हो तो एक्सक्लूड इक्वल टू नल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? आई डोंट नो, this exclude is giving a different meaning, right? But they have decided right this. ओके सर। Okay? यस सर। Now see one more interesting thing over here. Internally in R, let's say, in fact in R, let's say I'm just writing, please understand this. If I'm saying true, right, true plus tr, what will the answer? What will be the answer? अंकुर, सीमा, शिप्रा, सर पेस्ट कर रहा है कौन कैंडिडेट, मतलब वो कर रहा है, ये पेस्ट कर रहा है दो स्ट्रिंग। बेटा टू आएगा ना सर? नहीं टू आएगा ना सर? कौन ट्रू ही आएगा। internally true is stored as 1, yes false sir is stored as 0, Zero, and okay, okay. whenever you are basically using with arithmetic operator, तो 1 + 1 2 आएगा। 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है? yes sir बताया ना मैंने आपका ये। yes sir आप देखिए जरा, अब सिंपल सा देखिए, मैंने आपको बताया था दो फैमिली फंक्शन बताए थे, इज और इज। इज क्या Yes, करता sir. है? सर इस इस जगह- जो होता है वो बताता है कि कौन सी फैमिली का है, और कौन सा है, एस जो होता है वो कन्वर्ट करने के काम तो Yes. इस तरीके से मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इंटीजर, या तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मिस्टर Integer एक्स इंटीजर टाइप का है या नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स आएगा, ओके सर। यस राइट? यस। अब ये देखिए जॉब वाला कॉलम था, उसमें कुछ जगह तो आपका एनए हो गया 288 की वजह से, ठीक है ना? कुछ जगह आपको बहुत सारी कैटेगरीज थी, आपको कैटेगरी 1 बहुत सारी कैटेगरी दिखाई थी ना, यस तो सर सारी तरह की वैल्यू थी आपका। तो देखिए दोबारा से देख लीजिए, जॉब अगर मान लो मैं देखता हूँ, दोबारा देखना जरा, टेबल मैंने bd डॉट जॉब किया, bd डॉलर डॉट जॉब, ये आ गया, ठीक है, राइट? अब देखिए जरा,
इसमें मैं कहता हूं, मैं अब मैं कह रहा क्या कह रहा हूँ, देखो अब मैं अगर ये लिखता हूँ उसका मतलब क्या है, आप मुझे बताइएगा जरा। मैंने लिखा इज डॉट एन ए, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी डी, मैं एक कॉलम पास कर रहा हूँ उसके अंदर जॉब्स, राइट। इसका मतलब क्या है बता सकते हो? सर वो पूछ रहे हैं क्या वो जो कॉलम्स है वो अननोन है? नहीं नहीं नहीं, दो एनिमिस नल वैल्यू वैल्यूज है या इज नहीं, डॉट एन ए, आप पूछ रहे हो इस कॉलम के अंदर एन ए नल वैल्यूज। वैल्यू है या नहीं है, हाँ ठीक है। तो देखो टोटल जितनी वैल्यूज है उसमें 280 वैल्यू कहीं यहाँ पर नल है, मान लो कहीं यहाँ पर नल है, 288 जगह नल है, ठीक है। तो बेसिकली यू आर कंपेयरिंग ईच वैल्यू विद द नल वैल्यू, दिस वैल्यू इक्वल टू नल वैल्यू, यस है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो और हर जगह फॉल्स आएगा, जहां पर भी आपका जैसे नल वैल्यू यहाँ पर है तो उसको कंपेयर करोगे नल वैल्यू तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ओके, When you sum it the whole things, the answer will be 288 because we know that 288 is unknown, right? यस सर। यस सर। And a known value basically has been converted into a value, right? That's why we are using is dot na. Where it is find na, it will first convert into true, और उसका सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सम जो होता है मैंने आपका 2 + 2 वाला, उसका 288 आंसर आ जाएगा। यस सर। देखिए जरा, तो पहले मैं इसको रन करा देता हूँ, पहले सिंपल वाले को, इज डॉट एन वाले को रन करा के देखता हूँ। तो ट्रू फॉल्स समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। You can see over here basically you can see over at line number 28877, ये आपका ये इस पोजीशन पे क्या आपका ट्रू ट्रू वैल्यू है, राइट। ट्रू मींस नल वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो, देखो बीडी डॉलर जॉब्स, जॉब है ना, यस सर। Yes, sir. एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं 877, देखिए जरा एनी आ गया, यस सर। और 278 पे क्या करोगे, फाल्स क्यों आ रहा है, देखो जरा 78 देख लो, इसमें कुछ वैल्यू इसलिए फाल्स आ रहा था, देखिए वैल्यू को चेक कर रहा है ना वो। यस सर। क्या वो सीमा नहीं समझ में नहीं आया क्या? सर नहीं सर, आ गया समझ में। आ गया। यस तो देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स इन सबको ऐड करोगे तो ट्रू कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे नल वैल्यू थी, तो Yes, सम क्या sir. बता देगा, टोटल नंबर वैल्यूज बता देगा जहाँ पे नल वैल्यूज है, 288 आ जाएगा। यस ठीक है। यस। ओके दिस इज क्लियर। चलो ये नहीं करा रहा हूँ आपको मैं, अब मैं देखो आपको फंक्शंस करा रहा हूँ कुछ, देखो जरा। सर जो ये आपने ये लास्ट वाला करवाया है बीडी डॉलर जॉब 877 या फिर, तो इसमें अपन जब रन कर रहे हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दे रहे हैं, तो ये वो वैल्यूज देगा जो इसमें हमने प्रिंट अब करवाई है। सुनो बाबा सुनो, कितने रोज हैं इसके अंदर, डेटा सेट के अंदर? सर 9 समथिंग थे, 900 बीडी बीडी। यस। कितनी रोज हैं? ओके। 45,211 है, Yes. एक से लेके 45,211 है, राइट। यस। कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी यहाँ पर हर Yes. रो में, कहीं पे आपका अननोन भी रहा होगा, एन रहा होगा, अननोन को एन में कन्वर्ट कर दिया हमने, ऐसे ही रहा होगा कहीं, ओके। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको ये वेक्टर तो है, एक तरीके से कॉलम तो वेक्टर ही होता है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, इसकी ऐसे लिख लो, आप बात तो वही है 1 2 4 5 2 1 1, राइट। इस वैल्यू को आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एन है तो एन दे देगा वो, जो भी आप इंडेक्स दोगे, यहाँ पर एन नहीं तो वैल्यू रही होगी तो वैल्यू दे दी उसने रिटर्न करके, हाँ सर। यस सर, आगे सर। आ गया। यस सर। अब देखिए जरा आपका, अब मैं आपको अप्लाई फैमिली फंक्शन बताने जा रहा हूँ। देखो अप्लाई फैमिली फंक्शन में देखो, एक तो है एल अप्लाई, यस सर। एक एस अप्लाई। अंकुर है सप्लाई, सर आई थिंक अंकुर डिस्कनेक्ट हो गया है। क्यों? आई डोंट नो सर, अंकुर दिस शो नहीं हो रहा है सर। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है? हाँ अंकुर आ रही है। चलो अब एक शॉट दो ना, कम से कम क्या कहते हैं वो, एक अटेम्प्ट दो, क्या कहते हैं शायद हो जाए सही, ठीक है ना। यस सर। लो अब देखो जरा, तो दो चार फंक्शन होते हैं अप्लाई फैमिली के, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये गाइस, आई थिंक आपको कराया नहीं ना, मैंने आपको करा दिया। नहीं कराया सर ये। एल अप्लाई, एस अप्लाई, एक अप्लाई, एक टी अप्लाई, ये अप्लाई फैमिली का फंक्शन है। ये और भी है लेकिन ये चार ही इंपॉर्टेंट है, चार ही करा रहा हूँ, ठीक है। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे स्मार्ट कौन सा है, ये वाला इन सब में। यस। और स्मार्ट को याद रखने का तरीका समझ लेना, टी स्मार्ट में टी आता है, टी आ रहा है इसमें, ठीक है, सबसे स्मार्ट ये है, ओके। ठीक है। और देखो
यहाँ पर एल का मतलब क्या है, लिस्ट। लिस्ट। यस सर। ठीक है, ये क्या, एल अप्लाई एस अप्लाई सेम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि सॉरी, एल अप्लाई की बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एल अप्लाई बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एल अप्लाई में बताया, देखो मैंने एल अप्लाई फंक्शन कैसे करोगे, एल अप्लाई एक्स एस की यू आर टी, सपोज करो मान लो एक्स एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू आपने ले दी 4 16 36 64 पैकेट। ओके, तो जब इसको हम पास करोगे तो क्या निकल के आएगा पता है आपको? स्क्वायर रूट आएगा इसका। ये स्क्वायर रूट सब पे लगेगा। यस फंक्शन पास करते हैं, यहाँ वेक्टर पास करते हैं, सर। यहाँ फंक्शन पास करते हैं, राइट? यस सर। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, 2 4 4 6 8। 8। ओके, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिस्ट फॉर्म में आएगा। यस ये लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ये थर्ड एलिमेंट क्या होगा, ये फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, ये, यस सर। राइट? ये लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। और लिस्ट फॉर्मेट में बताने के लिए मैं क्या होता है, लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर पे ये पॉइंटर शो होते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, बताया था मैंने ये। यस सर। ठीक है, सेम ना काम करते हो एस अप्लाई में, एक्स एस क्यू आर टी देते हो, ये क्या देगा, ये वेक्टर दे देगा 2 4 6 8, राइट? ये वेक्टर देता है, ये क्या देता है, एलमिस लिस्ट देता है। काम दोनों सेम करते हैं, राइट? यस सर। अब अप्लाई क्या करता है, अप्लाई कहता है भैया कि अप्लाई सिंटैक्स, तो ये 3 वैल्यू चाहिए इसको। ऊपर वालों को क्वेश्चन है सर, हाँ? फिर लिस्ट और वेक्टर में कुछ डिफरेंस तो होता ही होगा ना? क्या नाम है आपका? शिप्रा। शिप्रा जी। सर आपने बताया नहीं था पहले, मतलब इसके हिसाब से आर के हिसाब से क्या डिफरेंस है? शिप्रा जी, ये डायग्राम तक बताया है मैंने। सर लिस्ट में पॉइंटर्स पे वैल्यू आती है, मतलब पहले वो पॉइंटर्स पे जाएगा फिर वो वैल्यूज पे जाएगा, राइट? तो यार ऐसा मत करो प्लीज, क्या करेंगे, इतना दुखी मत करो मेरे को यार। आई एम रियली दैट वेरी सैड कि आप इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी ये बहुत फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया पूरा डिटेल में, ये डायग्राम तक समझाया पूरा मैंने। सर लिस्ट और वेक्टर का नहीं बताया आपने, केवल लिस्ट का बताया हुआ है कि पॉइंट पॉइंट से उठाएगा, बट वेक्टर वाला नहीं बताया था। ये नहीं बताया था मैडम क्या? मैंने ये वाला एग्जांपल एग्जैक्ट ये बताया था 1 2 और उसके अंदर सी के अंदर ही डाल दिया, मान लो 4 5। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, क्या कहते हैं, ये वेक्टर की तरह रहे, लेकिन ये बस आउटपुट देखोगे तो 1 2 3 4 आएगा। ये बताया था नहीं बताया था? नहीं सर, ये वाला बताया था। ये देखो ऐसा जरा, कि ये डेटा सेट एक साथ आना चाहिए, बट ये इसको इंक्लूड इसके अंदर कर देता है। यस भैया बताया था, प्लीज क्या कहते हैं, फॉर गॉड सेक ये ऐसा तो मत करो यार। चलो मैं बताता हूँ, चलो लेकिन प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, मैंने ये बताया था कि देखो इस केस में क्या है, देखो कितने एलिमेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि सी के थ्रू मान लो वेक्टर बना लें, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि 1 2 और ये तीसरा क्या कहते हैं, वेक्टर की तरह दिखाई दे। मींस एक ये तो इंटीजर दिखाई दे, इंटीजर दिखाई दे, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव था वेक्टर की तरह दिखाई दे। इस उद्देश्य से आपने ये बना के लिखा, लेकिन इसने क्या आउटपुट क्या दी थी, ये इसका मतलब क्या, इसने इसकी एंटिटी खत्म कर दी, फ्लैटनिंग कर दिया। फ्लैटनिंग इफेक्ट बताया था मैंने। हाँ यस सर। फ्लैटनिंग इफेक्ट, यहाँ पर इसका इफेक्ट खत्म करके 3 4 दे दिया। अगर आप ये लिस्ट बनाते तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में सीधा लिस्ट में अगर आप देते, आपका एक 1 देते, एक 2 देते, एक आपका इस तरह ये 3,4 देते, तीनों की एंटिटी अलग होती। ये लिस्ट इस तरह बन गई होती, 1 यहाँ पर होता, 2 यहाँ पर होता और 3 और 4 यहाँ पर होता। हाँ। अब आगे समझे? भैया इस केस में केवल ये बनता है, ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4, कोई आपका आइडेंटिटी नहीं होती। आप बता नहीं सकते उसको देखिए कि भैया ऐसे दिया था इनपुट आपने। ओके। यहाँ पर आप इसका आउटपुट देख के भी बता सकते हो कि इनपुट आपने ऐसे दिया होगा। आया समझ में? यस सर। ये फ्लैटनिंग इफेक्ट मैंने ये बताया था, राइट? यस सर। सीमा क्या हुआ? नहीं सर, आ गया, समझ में आ गया मुझे। क्या जो इसने ओरिजिनल इसने पूछा उसकी आवाज नहीं आ रही है। सर आ गया समझ। जोशी मत करो बेटा, अगर नहीं आया तो पूछ लो। नाराज तो टीचर होता है, होने दो। टीचर को नाराज क्या है, आप पैसा दे रहे हो, ठीक है? कोई आपसे वो थोड़ी छीन ले जाएगा। नाराज होने दो, अपना बेस नंबर के पूछना चाहिए क्वेश्चन। नहीं आ रहा नहीं आया,
ठीक है, अगर ये पूछ सोचोगे क्या सर क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है ना। यस सर। ये यस सर, सबसे अब आ गया समझ में सर, मैंने करके देख लिया। देखो देखो सबसे बड़ा रोग दुनिया में क्या होता है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है ना। सबसे बड़ा वो कहावत है ना ये, हम्म। सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, ठीक है ना। यस। तो ध्यान रखना चीज का, ठीक है, समझ में आ गया अब। यस सर। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब देखिए यार हम लोग कहाँ पे थे, अब मुझे लगता नहीं, वो दोबारा से बनाना पड़ेगा पूरा, राइट। देखता सर हूँ, ट्राई अप्लाई करता पे हूँ। थे हम लोग। Apply। नहीं वो तो ठीक था, लेकिन डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। आई थिंक कर दिया डिलीट मैंने, राइट, हो गया। यस सर। कपिल आया है क्या आज? नो सर। यस। अब मेरे को ये बताओ, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, तो मेरे को अब यार ये बताओ कि देखो अब क्लियर है ना, एस अप्लाई एल अप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कि डिफरेंस क्या रहेगा, केवल ये यहाँ पर पॉइंटर टाइप स्ट्रक्चर आ जाएगा, लिस्ट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, सिंपल, राइट। यस सर। यस सर। अप्लाई में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दिया डेटा फ्रेम, कोई डेटा फ्रेम दिया, यहाँ पर आपने दिया 1 और 2, और यहाँ पर कोई फंक्शन दे दिया, जैसे एम्प्टी का डेटा सेट था, उसमें कितने कॉलम है, ठीक है, 32 सर, 32 रोज हैं उसमें और 11 कॉलम। कॉलम में ध्यान करो, कुछ ऐसा था AM BM यस सर, माइलेज HSP MPG DSP VM समथिंग लाइक दिस, ओके MPG। ओके। मैं चाहता हूँ पूरे AM में 32 रोज में सबका क्या कहते हैं, मुझे एवरेज निकाल के दे दे। एवरेज का मतलब क्या है, कितनी वैल्यूज होंगी, टोटल 32 वैल्यूज होंगी, यस सर। डिवाइड सम डिवाइड बाय 32, इसी तरह इसकी टोटल वैल्यू का सम डिवाइड बाय 32 कर दे, राइट। यस सर। ठीक है, तो मुझे वो एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसमें क्या बोल रहा है वो, अप्लाई लिखो, डेटा फ्रेम का नेम क्या है, एम्प्टी कार्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दो, 1 मीन्स कॉलम, 2 मीन्स रो। सॉरी 1 मीन्स रो, 2 मीन्स कॉलम। ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2। 2, यहाँ पर लिख देंगे मीन, यस सर। दैट्स इट। तो मीन के आगे ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाएंगी, ये चीज नहीं लगानी है, नहीं लगानी है, यस। ठीक है, ये चीज नहीं लगानी है, ओके सर। ओके सर। ओके, दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। तो पहले तीनों को देख लेते हैं एक एक करके एग्जांपल, ठीक है ना, उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। यस सर। So let me just delete this now. Let me just come over here. So see over here the example. Control L. पहले मैंने क्या लिया, जैसे x is equal to sample, मैंने लिया 1 to let's say 40, and I'm saying give me 10 values, right? ओके सर। x में आ गई 10 values। अब मैंने बोला x की वैल्यू देख लो जरा क्या है, 10 वैल्यू, ये 10 वैल्यू होंगी। अब मैंने बोला कि इसमें L अप्लाई लगाओ, L अप्लाई, x वेक्टर पास कर दो, सबका स्क्वायर रूट निकालो, SQRT, ठीक है, और कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है ना। ब्रैकेट मींस ये वाली चीज नहीं लगानी किसी में भी, राइट। तो मैंने कर दिया, अब इसको एंटर करो जरा, आगे समझ में। यस सर। दे दिया उसने, ठीक है ना। 23 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 पॉइंट समथिंग, 33 का ये होता है, ठीक है ना, आइडिया क्लियर। तो 1 का देखो चेक कर सकते हो, देखो फोर्थ पोजीशन में 1 का 1 है, देखो, राइट। अब देखिए जरा, तो अभी तक मैंने क्या दिया, x की वैल्यू ये थी, मैंने L अप्लाई किया, S अप्लाई देखो जरा, सर जैसे L अप्लाई में आपने स्क्वायर रूट निकाले, देखो L अप्लाई में दिखा भी रहा है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, तो सिंपल था, S अप्लाई में देखो मैंने क्या किया, हमको थोड़ा आवाज क्लियर करो यार, थोड़ा सा हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, अभी बताता हूँ इसको एग्जाम्पल के बाद। एक्स अप्लाई, यहाँ पर मैंने जैसे सपोज को SQRT यहाँ पर कर देता हूँ, SQRT, राइट। अब देखो जरा, दिस इज मच मोर बेसिक लॉजिकल, राइट। यस सर। ये वेक्टर फॉर्म में, उसमें क्या था, लिस्ट फॉर्म में। लिस्ट फॉर्म में वैल्यू सेम थी। यस, हमको आपकी क्वेरी क्या थी, सर क्वेरी ये थी, जैसे आपने L अप्लाई में ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाया, तो अपन स्क्वायर रूट में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कोई भी, मैक्सिमम। अरे आप भी लगा लो यार, इसमें मीन लगा लो,
अब मीन क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर मान के चल रहा है, राइट। पर मीन ऐसे क्यों निकल, ठीक है, वैसे मीन निकलेगा नहीं, तो सेंस नहीं है, इसमें कुछ भी ला सकते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन दे सकते हो, सपोज करो। तो मैक्स निकाल लीजिए। हाँ मैक्स निकाल लो, हाँ मैक्स ठीक रहेगा, यस मैक्स लिखते क्या होता है, मैक्स भी वही दे देगा। मैक्स तो एक नहीं सर 35 देना चाहिए, आई थिंक एक्स में से दे रहा है ना वो। नहीं नहीं समझे नहीं आपका, देखो वो तुम समझे नहीं, आपका ऐसा नहीं होगा। अच्छा यहाँ एज पे अप्लाई, ओके ओके। देखो सिंपल सा, देखो इनफैक्ट देखो एस अप्लाई का तुम देखो ना वो सिंटैक्स पूरा, एस अप्लाई क्या अज्यूम कर रहा है, देखो जरा लिस्ट। अच्छा, एस अप्लाई जो है वो पूरे फंक्शन पर ही, पूरे वेक्टर पर ही लगेगा। देखो बेटा ऐसे ही काम करता है, देखो लिस्ट एस मान लो ये लिस्ट है, ठीक है, एस अप्लाई हुआ या एल अप्लाई हुआ, कैसे काम करता है देखो जरा, लेट मी टेक दिस व्हाइट, ये क्या करता है, मान लो ये एलिमेंटल लिस्ट के, ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए, x1 x2 x3 x4, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मुझे भैया एक ये इसका नाम ए वेक्टर दो, लिस्ट दे दो, उसको फंक्शन लगाना, मान लो एसक्यूआरटी दे दूंगा, तो क्या कह रहा है कि मैं x1 को उठाऊंगा, एसक्यूआरटी लगाऊंगा, यहाँ रख दूंगा, बी पे लगाऊंगा एसक्यूआरटी यहाँ रख दूंगा, तीसरे पे लगाऊंगा एसक्यूआरटी यहाँ रख दूंगा, ठीक है। यस सर। अब देखो अगर आपने एल अप्लाई लगाया है तो ये लिस्ट बना देगा, लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुई, वैल्यूज के आगे पहले एक पॉइंटर लगा देगा, ये कह देगा भैया ये लिस्ट बन गई, ये पॉइंटर लग गया, ये पॉइंटर लग गया, ये पॉइंटर लग गया, ठीक है। और अगर मान लो इसी को वेक्टर बनाता तो क्या कर देता, सीधे ऐसे लिखता, और इसका मान लो आउटपुट आ रहा है y1, इसका y1 आ रहा है, इसका y2 आ रहा है, y1 y2 y3 y4, यहाँ पर क्या होता है y1 y2 y3 y4। आइडिया क्लियर अंकुर, आइडिया क्लियर अब तो? यस सर, आइडिया क्लियर हो गया, बट जैसे इस ठीक है सर, स्क्वायर रूट जैसे अगर ये आपने तो लिस्ट कुछ भी लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, तुम मान लो आर में फंक्शन लिख रहे हो इस तरह का, देखो सपोज करो फंक्शन, कैसे लिखा जाता है आर में फंक्शन, बता सकते हो? बताया नहीं था मैंने आपका ये सर माय फंक्शन। माई फंक्शन, यार वो तो कीवर्ड था, वो माई फंक्शन कुछ ही वैल्यू ले सकते हो, ठीक है सही बोल रहे हो आपका। जैसे f1 लिया, f1 इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है, इसमें आपने एक वेक्टर ले लिया, मान लो x वेक्टर पास कर रहे हैं, और यहाँ पर आप रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न एक्स क्यू, राइट, ये बाउंड्री होगी इसकी, एंडिंग होगी, राइट, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखो एस अप्लाई, इसमें कोई सा वेक्टर ए वेक्टर दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया f1, यहाँ पर वैल्यू है दूसरी वाली, f1 बेसिकली f1 ही लिख दो, उससे काम चल जाएगा केवल। रन करा के दिखाऊं इसी में क्या गाइस? अंकुर क्या हुआ बेटा? करा दीजिए, वैसे तो मतलब ठीक है, एक हाँ? बार देख लीजिए सर करा के, और किसी मतलब इसी एग्जांपल में थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, देखता हूँ बेटा, मैं कराता हूँ, एग्जाम्पल है इनफैक्ट मेरे पास, देखो देखिए, इनफैक्ट देखिए इधर देखिए जरा, इनफैक्ट पहले एक एग्जाम्पल और देख लो बेटा, अभी थोड़ा मैं पूरा एग्जाम्पल समझाऊंगा पूरा में, एक चीज और देख लो, लास्ट बची हुई एक चीज और देख लो जरा, ये टी अप्लाई बचा हुआ है, ये आपका अप्लाई तो क्लियर हो गया ना? यस सर। डेटा फ्रेम 1 और 2, और यहाँ पर क्या होगा, जो भी फंक्शन लेना चाहो, मीन स्क्वायर रूट जो भी लेना चाहो ले लो, राइट। सर जैसे अपन उस डेटा फ्रेम में एवरेज निकाल रहे थे, वो जो 32 रोज थी, राइट, हाँ तो सर ये जो 1/2 आपने लिखा है, ये एवरेज डिनोट कर रहा है क्या? नहीं नहीं, ये 1 और 2 कॉलम और रो के लिए बता रहा है। सिंपल सी बात देखो, ये है, ये ठीक है। अब आप सपोज करिए कि आपको ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, इन पांचों वैल्यू का एवरेज निकालना है, इन पांचों का एवरेज निकालना है, इन पांचों का एवरेज निकालना है, इन पांचों का एवरेज निकालना है, तो कॉलम वाइज एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, लेट्स से इसका नाम है डी, नाम है डेटा फ्रेम का, तो आप लिखोगे अप्लाई डी डेटा फ्रेम नेम 2 फॉर कॉलम, और यहाँ मीन, राइट।
तो क्या कर रहा है आपका, तो डेटा फ्रेम से बोलेगा पहला कॉलम दो मुझे 2 मिस कॉलम, उसका मीन निकाल देगा, यहाँ पर दे देगा। दूसरा कॉलम दो, उसका मीन निकाल लूंगा, यहाँ पर दे दूंगा मैं। आया हमको समझ में? सर ये सेकंड वाला मतलब ये नहीं आया, आपने टू लिखा है। क्या चीज समझ में नहीं आई? ये टू लिखा सर आपने। 2 बेटा 1 लिखना है, मीन्स मुझे रो के करस्पॉन्डिंग वो करना है ऑपरेशन। 2 लिखा है मीन्स कॉलम के करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करना है मुझे। और फिर ये सारे कॉलम्स को सर कर लेगा ऑटोमेटिकली। यस, ऑटोमेटिकली। ये लूपिंग वाली, ये अप्लाई बेसिकली लूप फंक्शन को उसको रिप्लेस करने के लिए बनाए गए ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू उठाता, ये उठाता, ये उठाता, ये उठाता, इन सबका सम करके मीन करके देता, जो भी लिख रहे हो यहाँ पर। ओके, नाउ एक लास्ट रहेगा टी अप्लाई। टी अप्लाई स्मार्ट अमंग ऑल दोज 4 फंक्शंस। टी अप्लाई क्या कहता है अंकुर, एम वाले कॉलम में क्या क्या वैल्यूज थी, ध्यान आ रहा है कुछ? एम टी कार के एम वाले उसमें क्या क्या वैल्यूज थी? बुलियन वैल्यूज थी उसमें। 0 1 ओके। कैन आई बेसिकली ग्रुप इनटू दिस? अगर मैं इसको ग्रुप करता कि ऑल द रोज जो 0 वाले इनको एक साथ कर लो, ऑल द रोज 1 वाले इनको एक साथ कर लो, कर सकता हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है किस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी है, वो यहाँ पर आ गया। राइट, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे इसमें? एम की वैल्यू के हिसाब से 2 ग्रुप बन जाएंगे। अगर मान लो 3 वैल्यू होती, मान लो 0 भी होती, 1 भी होती, 2 होती, रो में या तो एम में 0 होता है या 1 होता है या 2 होता, 3 कैटेगरी होगी, 3 ग्रुप बन जाते, तो 3 ग्रुप बना देता है ये। ठीक है, ये ग्रुपिंग हो गई। अब ये कह रहा है कि हर जब 0 में मान लो 10 रो आई, इन 10 वैल्यूज का मीन निकाल दो मेरे को। इसमें मान लो 1 आई, मतलब 1 वाली कैटेगरी मान लो 15 आई, तो 15 का मीन निकाल दो मेरे को। ग्रुप वाइज मीन निकालना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। राइट, मीन निकालना हो या क्या कहते हैं मैक्सिमम निकालना हो, ग्रुप में कौन सा मैक्सिमम है, निकाल सकते हो ना? यस सर। तो बेसिकली टी अप्लाई हम ग्रुपिंग के लिए यूज में लेते हैं। यस, ग्रुपिंग के बाद उसको ग्रुप पे कोई ऑपरेशन लगाना हो। ओके, ठीक है, आइडियाज क्लियर? ठीक है भाई। यस सर। यहाँ पर हमने लिया, सपोज करो मुझे एमपीजी ले लिया यहाँ पर कॉलम, मैंने कॉलम क्या लिया मैंने यहाँ पर? एमपीजी। यहाँ पर कॉलम देते हैं, ध्यान रखना। यहाँ डेटा फ्रेम दिया, यहाँ पर क्या देंगे हम? कॉलम। एमपीजी कॉलम दिया, एएम दिया, और यहाँ पर क्या दिया आपने? मीन दिया। अब निकाल सकते हो ना आप? ये क्या करेगा, एमपीजी कॉलम की 32 वैल्यूज को 0 के हिसाब से ग्रुप कर देगा, एक ग्रुप बना देगा, 1 के हिसाब से ग्रुप बना देगा, दोनों का मीन निकाल लो। सर तो हम दोनों जगह कॉलम देते हैं, एमपीज भी तो कॉलम है और एएम भी कॉलम है। हाँ, अच्छा सर, ये करेगा कि जो एएम में 1 वैल्यू है उसकी ग्रुपिंग करेगा एमपीजी के साथ, और एएम में जो 0 की वैल्यू है उसकी भी ग्रुपिंग करेगा एमपीजी के साथ, इसलिए हमने देखो यहाँ बेटा, पे एएम दिया। आंसर देख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे यहाँ पे समझने नहीं जाए। देखो उधर देखो, जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल एल कर दिया, इसको कंट्रोल कर दिया, जैसे मैंने किया टी अप्लाई वेक्टर इंडेक्स। ओके, सो लेट्स से मैंने वेक्टर दिया आपको एमपीजी, यहाँ पर मैंने दे दिया एएम के करस्पॉन्डिंग वो करो आप, ग्रुपिंग करो। राइट, यहाँ मैंने दे दिया मीन। हो गया, क्या गड़बड़ हुआ पता है? सर आपने वो एम्प्टी कार्ड्स को शायद वो नहीं करा। यस, ठीक है। यस सर। ऑल द रोज ऑफ 0, उसमें जितनी एमपीजी वैल्यू थी सबकी उसने क्या कर दिया? एवरेज निकाल दिया, 1 का एवरेज निकाल दिया। अब आप सपोज करो एएम में कितनी वैल्यूज है? 0 1। 0 1। बीएम में कितनी वैल्यू थी? बीएस में सर आई थिंक 3 3 सर, नहीं उसमें 0 1 1 थी। 0 1 थी, तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, दोनों को मिलाओ कितने ग्रुप बन जाएंगे? 4 ग्रुप बन जाएंगे। यस सर। अगर वो कैसे बनेंगे? एएम बीएस दोनों की वैल्यू 0 हो, दोनों की वैल्यू 1 हो, एक में 0 1 हो, 1 हो 0। राइट, 4 ग्रुप बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर टी अप्लाई करूंगा, इन दोनों के हिसाब से ग्रुपिंग करूंगा मैं, तो कैसे करूंगा वो देखो जरा। राइट, यस सर। अभी तो एक ग्रुप के हिसाब से वो किए मैंने, अब उसके हिसाब कैसे करूंगा देखो जरा।
देखो इट्स जस्ट मिनट, यस टी अप्लाई, राइट, यस सर, ये लिख लिया। इसमें मैंने लिखा एमपीजी, में लिख MP लिया। उसका मैं लिस्ट के फॉर्म में पास करूंगा, लिस्ट। ओके सर, इनफैक्ट यार ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, ये सिद्धवा से एरर देगा, पता है ना। सर एम्प्टी कार्स, एम्प्टी कार्ड्स, लिस्ट के अंदर 2 सर, ये कॉलम दे दो। फिर से एरर दे देगा, आपने स्पेलिंग गलत किया। गलत कर दिया सर। एम्प्टी कार्स डॉलर AM DS डॉलर AM, राइट। यस सर, यहाँ पे लिख दूं मैं मीन। आगे समझ में? यस सर, यस सर, ये एमपीजी की वैल्यूज हैं हम्म, और ये आपको किसकी, EM की वैल्यूज हैं। सॉरी, ये BS की वैल्यूज हैं, ये AM की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। ये रो, ये कॉलम, राइट। यस सर, तो देखो दोबारा सुन लो, समरी में दोबारा से लिख रहा हूँ। अप्लाई फैमिली क्या करती है, लूप को रिप्लेस करती है, राइट। यस सर, 4 फंक्शन है इसके, अप्लाई, एल अप्लाई, एस अप्लाई और टी अप्लाई, राइट। यस यस सर। चलिए, सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, एक क्वेश्चन। सर हमने अप्लाई मेरे को समझ में आ गया, टी अप्लाई समझ में आ गया, बट एल अप्लाई और एस अप्लाई में हम डेटा फ्रेम लेते हैं और हमने फंक्शन लगाया, बट हम कोई फंक्शन लगाया ना तो वो कोई फंक्शन दे तो रहा नहीं, बस वो लिस्ट में और वेक्टर में शो कर रहा है बस। देखो बेटा दोबारा से देखो, कंफ्यूज मत करो, देखो जरा यस सर, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ क्लियर। मेरे हाँ एक नोट, एग्जांपल दे दीजिए सर। हाँ नोट्स भी है पूरे, देखो। देखिए सपोज करिए, देखिए ये देखिए मैंने क्या किया, ये एक्स है, ठीक है ना। अब इसमें 10 की मैं आपका ले रहा हूँ, क्लियर समझ में जाएगा। 2 वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 1 से 100 के बीच में कितनी वैल्यू ले रहा हूँ मैं, 2 वैल्यू रेंडमली निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओके सीमा, यस सर। यस सर, यस सर, यस यार ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप हो तो आप बोलो तो कम से सर, वो कम। अनम्यूट हो गया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जरा, एक्स की कौन सी वैल्यू है, 2 है, 17 और 15। यस अब एक्स पे आपने क्या लगाया, एल अप्लाई। यस देखो आंसर देखो, इसने आंसर दिया लिस्ट की फॉर्म में दिया, यस सर, ठीक है। यस सर, अगर मैं इसी में आपका एस अप्लाई, ये एस अप्लाई लगाता, ये देखो सेम आंसर वेक्टर फॉर्म में। अब जैसे सर कुछ और फंक्शंस है, मेरा पूछने का मतलब जैसे मेरे को इस लिस्ट में मान लीजिए मैंने 1 से लेके 10 तक लिस्ट मतलब एक वेक्टर ये पास करा, एक्स में वैल्यूज डाल दी, मैं चाहती हूँ मैक्स मैक्स वैल्यू निकाल लूँ, तो मैक्स भी तो एक फंक्शन है ना हमारे पास, पर वो मैक्स की वैल्यू नहीं दे रहा है। मेरा ये मैं ये यार मैं वही चीज तो आप समझ नहीं रहे, डायग्राम को समझोगे नहीं यार तुम। डायग्राम तो देखो पहले, एक्सप्रेशन डायग्राम क्या होता है मैंने, ये देखो सिंपल सी बात है। देखो कि मान लो ये वैल्यूज है x1 x2 x3, 3 वैल्यूज हैं। इसमें एल अप्लाई, आपने एस अप्लाई कैसे काम करता है, एल अप्लाई आपने लगाया यहाँ पर। यस सर, वो कह रहा है कि मुझे ये लिस्ट दे दो, वेक्टर दे दो, मैं एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा, उसके ऊपर फंक्शन लगाऊंगा मैं। तो मैक्स को एक एलिमेंट आया, मैक्स लगा दिया उसने। ओके ओके सर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आया, मैक्स लगा दिया उसने। मैक्स वो आप समझो, वर्किंग समझो, वो एक साथ नहीं ले रहा सब। वो यस सर, यस सर, सर अब आ गया समझ में। एक एलिमेंट दो, फंक्शन लगाऊंगा, आउटपुट दे दूंगा मैं, ठीक है, ओके सर, ठीक है। यस क्लियर हो गया? यस सर, यस चलिए दोनों क्लियर हो गए। यस सर। अब देखो ये आपका ये वाला क्या करेगा, ये वाला बताओ जरा। सर सेकंड कॉलम पे का मीन निकालेगा ये एम्प्टी कार्स में, तो ये साइकिल जो है ना उस सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर का वो मीन निकालेगा, कॉलम सबका मीन निकाल देगा। हाँ, सिलेंडर का। यस यहाँ डेटा फ्रेम दिया, ओके, और ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया कॉलम से निकालना है मीन। देखो अगर आपने डेटा फ्रेम दे दिया पूरा ना, सपोज करो, आप लॉजिकली समझो, एक दो बार लगाओ समझ में आ जाएगा। अगर अप्लाई आपका क्या कर रहा है, आपका ये डेटा फ्रेम दे दिया आपने, ठीक है ना। तो डेटा फ्रेम के जितने कॉलम है सब पे लगेगा नहीं लगेगा, ये तो बताया था मैंने डायग्राम में। यस यस सर, सर, 1 और 2 बताया था आपने। यस ठीक है। यस तो देखो ये मीन क्या उतारा आपका, हर कॉलम का मीन उतारा है, ठीक है। यस यस सर। सर,
आप बताओ, अब ये बताओ, अगर मैं 1 लगा दूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये? रो वाइज सर रो आ जाएगा, रो वाइज कर तो देगा ये। रो वाइज लगाने का कोई सेंस है क्या? नहीं सर। नहीं सर। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जहाँ पर रो वाइज लगाएं तो सेंस आएगा? सर रो वाइज से कोई सेंस नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सेंस? अभी तो अभी आपको सेंस आएगा। सर, देखो वो चिंता तो मत मिक्सचर ऑफ डेटा हो जाएगा ना, एमपीजी सिलेंडर। करो। नहीं, किसी कोई एक एग्जांपल, कोई दूसरा एग्जांपल। हाँ, डिपेंड ऑन द डेटा सेट हो गया ना वो तो फिर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। आप देखना चाह रहे हो आपके घर में बच्चा हो, उसने कितने आवर ऑन एन एवरेज टीवी देखी मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। हम्म, ओके, टाइम नोट किया, मॉर्निंग शिफ्ट इतना देखा उसने, हाँ। इवनिंग शिफ्ट इतना देखा उसने, सोते समय उसने इतना देखा उसने। अब इस पे तो रो वाइज भी लगाएंगे और दोनों निकल कॉलम सकते वाइज हैं, भी लगा लेंगे। हाँ दोनों निकल सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है? हाँ डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट? हाँ। आइडिया समझ आ गया? यस सर। या टेम्परेचर मान लो, दिन का टेम्परेचर मॉर्निंग का ये लिया, आफ्टरनून का लिया, इवनिंग का ये लिया, हाँ एवरेज निकालना है डे का। ये तो डेली करते हैं ना देख के। यस सर। ओके, चलिए, so this is, we are done with this now. So this is in fact this example दे रखा है, ये वाला कर लोगे नहीं वाला? अब चलो सुनो जरा। अब गाइस देखो, अभी अंकुर वाला, अंकुर आप हो यहाँ पर, अंकुर को एक क्वेरी थी वो बताने जा रहा हूँ मैं। अंकुर, यस सर। उसमें ये था कि सर मीन की जगह आप कुछ और ले सकते हैं क्या? राइट, आपका ये था कि मीन की जगह कोई दूसरा फंक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? आप देख रहे हो ये वाला देखो, ये वाली चीज देखो, ये समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? अब एक चीज देखो जरा, इसमें क्या किया मैंने, देखो ये फंक्शन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फंक्शन लिखने का क्या था? एनी वेरिएबल नेम, यस सर। कीवर्ड ले लो कोई सा भी, उसके अंदर क्या वैल्यू देनी है अपने लॉजिक के हिसाब से देख लो, और इसका ये आपने लिख लिया। यस ये मीन निकाल लिया, निकाल के रिटर्न क्या कर रहे हो? मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ही कर रहे हो आपका, ठीक है ना? अब आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। आपने क्या बोला? अप्लाई डेटा फ्रेम दिया एम्प्टी कार्स, उसमें बोला टू मीन्स कॉलम, हर कॉलम पे ये वाला फंक्शन मेरा लगा दो, आउटलायर अपर, राइट? यस सर। सर। यस सर। जस्ट मिनट। सो सीमा क्लियर है? यस सर। क्लियर है, तो ये अप्लाई में कितनी वैल्यूज आउटपुट आएंगी? माय गॉड। ओके, अपन ने सर 11 कितनी कॉलम्स है? 11 कॉलम्स है हमारे पास, राइट? हम हाँ। कॉलम्स पे लगा रहे हैं। यस, तो 11 सर, 11 वैल्यूज आएंगी। यस, 11 वैल्यूज आएंगी। 11 वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी? देखो, इस कॉलम, इस डेटा फ्रेम का पहला कॉलम लिया, यहाँ पास कर दिया ये वेक्टर, भाई कॉलम तो वेक्टर होता है ना, यस सर। उस वेक्टर का सबका मीन निकाल लिया, एम में रख दिया उसने, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया और रिटर्न कर दिया ये वाली चीज। यस सर। सिंपल, मान के चलो एक वेक्टर, मान लो इस तरह के, मान लो ये वेक्टर होंगे ना 11 टोटल, यस सर। 1 2 3 लेट्स से 11 हो गए, ठीक है ना? इन सबको उठाएगा पूरा ये, उसको यहाँ पास करेगा, पास करने के बाद ये ऑपरेशन करने के बाद ये वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा? m प्लस 3s, राइट? यस सर। सबके लिए रिटर्न करेगा, राइट? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है अंकुर? यस सर। एक टेबल का पहला कॉलम उठाया उसने, उठा के बोला कि एक्स तुम ले लो से, एक्स ने इसको लिया ये वेक्टर, उसे टेबल से मतलब नहीं, उसने वेक्टर लिया, उसने बोला इस वेक्टर में जितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज होंगी इस वेक्टर के अंदर? 32 वैल्यूज होंगी, राइट? यस सर। 32 वैल्यूज का मीन निकाल दो, 32 वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, ये एक्सप्रेशन को निकालो और उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। वो यहाँ पर एक तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे आ गई, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो ये कर लिया, चलो आप लोगों ने, बड़ा अच्छी चीज है। इसको रन कर लें कोड को, इस कोड को रन कर लें क्या? यस सर। तो देखो, Yes. मैंने आपको बताया था कि जब तक फंक्शन आप डेफिनेशन रन करोगे
तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने रन कर क्यों याद कर लिया कि ये फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह की आने वाली है, राइट। यस सर, अब हम फंक्शन कॉल करेंगे सर उसके लिए। यहाँ फंक्शन कॉल किया, कॉल करते समय अगर देखो अप्लाई फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हो किसी फंक्शन को, जैसे अप्लाई फंक्शन के अगर बाहर कॉल करते हैं इसको, तो आउटलायर डॉट अपर, यहाँ पर क्या करते हैं ब्रैकेट लेते हैं, ब्रैकेट में कितनी वैल्यू चाहिए वो यहाँ लिखते हैं। एम्प्टी का जब अप्लाई के अंदर पास करते हैं तो अप्लाई ऑटोमेटिकली जो भी आर्गुमेंट है यहाँ से दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं लिखेंगे, राइट। ठीक है सर। अब देखो इसको, अब रन करा सकता हूँ उसको मैं। यस सर। रन हो गया, आप देख रहे हो। यस सर। अगर आपको ध्यान हो कुछ कुछ, तो ये क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया था, कुछ कुछ इस तरह करते थे हम लोग, Q3 + 1.5 into IQR, यस यस सर, सर। ये आउटलायर से रिलेटेड था। यस सर, और मैंने ये भी कहा था कि ये तो सब्जेक्टिव कॉल होता है, आप कुछ और भी ले सकते हो। भाई अगर देखा जाए अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी निकल के। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे उसमें, इस वैल्यू से अगर ज्यादा कोई वैल्यू तो आउटलायर है वो, राइट। यस सर, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको आउटलायर की रेंज मान लूं, इस इन वैल्यू से उस कॉलम, ये एवरेज है एमपीजी कॉलम का, एमपीजी कॉलम में कितनी वैल्यूज है 32, उसका एवरेज ये है। सिलेंडर में कितनी वैल्यूज है 32, उसका एवरेज ये है। अब मैं चाहता हूँ एवरेज में क्या होगा, एवरेज का मतलब है कि इस वाले कॉलम में अगर ये एवरेज है, राइट, तो कुछ वैल्यू इससे ऊपर होंगी, कुछ वैल्यू नीचे होंगी इससे। यस सर, ठीक है, बट बाय द वे दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज दिस एक्सप्रेशन। ये एवरेज नहीं, एवरेज तो एक्स होता केवल, ये चीज है, ठीक है, ध्यान रखना, राइट। यही तो कर रहे थे हम लोग। यस अब इसको मान लें, ये मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मान लें आउटलायर मान लें, तो इससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो आउटलायर होगी। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एमपीजी कॉलम में अगर कोई वैल्यू जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा है वो आउटलायर हो गया। यस सर। सिलेंडर कॉलम में ये अगर वैल्यू इससे कोई ज्यादा हो गया तो सिलेंडर कॉलम में जितनी वैल्यू से ज्यादा होगी वो आउटलायर होगी। यस सर। ऐसे इसमें होगी आउटलायर, राइट। यस सर। अब मुझे वो आउटलायर निकालना है, कितनी वैल्यूज इसमें इस एमपीजी कॉलम में से ज्यादा है, क्या करूंगा मैं। सर Q3 और माइनस क्या, सीधी सी बात है, देखो बेटा, रिपीट कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप। एमपीजी कॉलम में इस वैल्यू से ज्यादा कोई वैल्यू है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं। अच्छा सिंपल सा ये करूंगा मैं, सर, सिंपल सा आप एक वो फंक्शन लिख दो। एमपीजी ग्रेटर लेस देन देन 38.1714669। सर सर एम्प्टी कार्ड्स आएगा सर, एम्प्टी कार्ड्स होगा। बार बार वही प्रॉब्लम कर रहा हूं मैं ना। फिर बात की सर। सर अगर हम एक बार एम्प्टी कार्ड्स कॉल कर लें तो भी हमें ये एम्प्टी कार्ड्स डॉलर देना पड़ता है क्या, या फिर हर बार हमें देना पड़ेगा। हर बार देना पड़ेगा ना वो, तभी तो। क्या था, एमपीजी था ना, ग्रेटर देन 38.1714669। इसका आउटपुट क्या आएगा सर, ये तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, बता देगा कौन कौन सी वैल्यूज बड़ी है, कौन कौन सी छोटी हाँ है। सर, सारी फॉल्स हैं सर। ठीक है। अगर मैं इसका सम कर दूं क्या आंसर आएगा। सर तो बता देगा कितनी उससे बड़ी है। ठीक है, अगर मैं इसका सम करूं क्या आंसर आएगा अभी के केस में। 0। फिर वो ऊपर वाले पे सम लगाना ना। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो इसको देख लेते हैं, इसमें आई थिंक है, कार वाले में है। इसमें अगर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया CARB, राइट। और यहाँ पर मैंने कर दिया, क्या वैल्यू है इसकी 7.65810। सर एक वैल्यू एक वैल्यू ऐसी है
जो क्या जो कहते हैं ये क्वार्टाइल से इससे ज्यादा है, यस वो वैल्यू कौन सी होगी निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। अगर मैं ये करूं एम्प्टी कार्स $CARB लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर अगर मान लो कंडीशन दे दूं मैं ये वाली, तो वो वाला निकल आएगा जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है, यस सर। ओके। तो वैल्यू कौन सी है? 8 वैल्यू है कोई, ठीक है ना, ठीक है। अब ये अगर मान लो किस लोकेशन पे आपका ये ट्रू हुआ, आपका कहाँ पर है, कौन सी वैल्यू है, वो कैसे पता करेंगे? विच, एम्प्टी को। ध्यान आ गया? ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं इस पे, ये देखो ये रिटर्न करके दे देगा। अगर मान लो इसको मैं इसको ना हटा दूं, मैं सिंपल एंड कर दूं केवल में, 31st वैल्यू है वो 8 है, ठीक है, चेक भी कर सकते हो। देखो एम्प्टी कार्स डॉलर कार, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 31। आ गया? सब क्लियर हो गया ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना शिप्रा? अंकुर, यस सर। अंकुर जी यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? कृतिका, कृतिका आर यू देयर? कृतिका यस सर, आई एम हियर ओनली। या समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए Yes. ठीक है, गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जरा यहाँ पर ये कोड क्या करेगा, बता सकते हो? वाला कोड कौन सा वाला सर? कौन सा वाला सर? 159। सर कोई फंक्शन कॉल करा है इसमें, फंक्शन एक्स। सर जो एक्स में जाएगा ना, अच्छा जो कॉलम है हमारा, एम्प्टी कार्ड्स में जो सेकंड कॉलम लिया है इसमें तो मतलब जो रो, जो हमारी कॉलम यार देखो, सुनो 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 सर सुनो वही सुनो कर रहा है सुनो ये। सुनो 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 पहले पहले सिंटेक्स समझो इसको प्लीज, थोड़ा सा सुनो जरा। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं यहाँ पर, हाँ। मैंने कॉपी कर लिया, यस सर। ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसमें मैंने कहा था डेटा फ्रेम दे देना, इसमें हाँ। बताया था मैंने 1 और 2 दे देना, इसमें बताया था कोई फंक्शन दे देना। फंक्शन फंक्शन देने का मतलब क्या है? इस तरह कुछ चीज देनी थी मुझे, यस सर। यहाँ कुछ फंक्शन देना था मुझे, यस सर। यहाँ कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है, इसमें मैंने यहाँ पर दिया, आउटलायर वाला दिया है, यस हाँ। सर। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आउटलायर ना लिख के या आउट अपर ना लिख के ये पूरा का पूरा फंक्शन ही पास कर देता तो कैसा रहता? सर वो भी रन हो जाता सर। वो भी रन हो जाता ना। यस तो सर। बेसिकली वो यही चीज हो रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे, समझिए जरा। देखिए देखिए, दो फंक्शन हो गए, कंफ्यूज मत कर जाना। एक आप क्या कह रहे हो, देखो इसको, इस 159 को जरा वो करो, समझते हैं। 159 पर ये क्या लिखा हुआ है? 159 पे इस चीज को देखते हैं, इसको क्या है। अगर इसको देखो मैं, ऐसे लिखा हुआ फंक्शन एक्स, और एक फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है ये, यस सर। और इसके अंदर मैं लिखा एक्स इज ग्रेटर देन आउटलायर अपर। ये क्या करेगा? जो आउटलायर अपर जो वहां पर जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां से लेगा, एक्स की वैल्यू यहां पास हो जाएगी, और वो वहां जाके आउटलायर फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है देखो जरा, ये आउटलायर फंक्शन लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये क्या यार, ये आउटलायर फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्या करा आपका, देखो आउटलायर को रन करने के लिए क्या चाहिए, उसको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ये, और आउटलायर से कॉल कर लो। यहाँ पर क्या किया, फंक्शन यहाँ पर लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ दे दी थी, ठीक है ना। और इस फंक्शन का नाम आपने क्या कहेंगे, आप इसको मान लो आप ऐसे लिख देते एबीसी, ठीक है। आप और यहाँ पर देखिए, इसका अगर मैं सम करूंगा, ट्रू फॉल्स देगा ये, तो टोटल वैल्यू दे देगा, जो वैल्यू इस कंडीशन को पास सेटिस्फाई कर रही है उतनी वैल्यू दे देगा निकाल के, यस सर। ठीक है। तो मैं इसकी बजाय यहाँ पर अगर मैं एबीसी लिख देता, वो भी एक चीज थी, इसको Yes. रिमूव करके यहाँ पर मैं अगर एबीसी लिख दूंगा, वही सिम चलेगा। यस सर। आगे समझ में? यस हाँ। सर। चलिए गुड।
ध्यान रखिएगा, कोड छोटा करने के चक्कर में रीडेबिलिटी कम ना हो जाए। इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसमें रीडेबिलिटी बहुत पुअर है इसकी, राइट। यस सर। एक ही चीज में एक लाइन में करोगे तो क्या हुआ, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान करो, आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पिछली बार कि भाई मैनुअल कार और दैट ऑटोमेटिक कार में किसका एवरेज ज्यादा होता है। तो एक तो वैसे किया था हम लोगों ने, एक टी अप्लाई करते थे, एक लाइन में आ जाता, यस सर। ठीक है ना। आगे समझ आ गया। यस सर। चलिए अब देखिए, मैंने वही वाली चीज आपको बता दी, लिस्ट वाली चीज बता दी मैंने आपको, ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें मैंने, ठीक है। यस सर। ये हो गया, अब आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, आर्थराइटिस डेटा सेट बता दिया था मैंने आपको ना। यस सर। ओके, सो वही डेटा सेट का यूज करते हैं इसमें। देखो जरा, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं किया है मैंने, कि सपोज करो, कुछ पहले वाले में तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, सपोज करो इस वाले में क्या बता रहा हूँ मैं, कि मान लो आर्थराइटिस डेटा सेट में कितने कॉलम थे, इफ यू रिकॉल, आईडी था, दूसरा क्या था, 5 सेक्स, मेल फीमेल, ट्रीटेड, ट्रीटेड, यस, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। सर एक चीज और थी, एज। एज। ओके, ये थी। अब मैं कह रहा हूँ इसमें एक कॉलम और ऐड कर दो नया, और उसमें एज स्क्वायर निकाल दो। मान लो अगर 2 है तो यहाँ पर रो में क्या आ जाए, 4 आ जाए, यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाए, 16 आ जाए, यहाँ पर मान लो 8 है तो क्या आ जाए, 64 आ जाए, यहाँ पर 10 है तो मान लो 100 आ जाए, राइट। यस सर। एक नया कॉलम बनाना, तो कैसे करोगे, डेटा फ्रेम में नया कॉलम बनाने के लिए क्या करते हो, आपका डेटा फ्रेम नेम डॉलर, कॉलम का नाम जो देना वो दे दो, इज इक्वल टू, नई वैल्यू दे दो, मान लो 200 दे दिया आपने, सपोज करो, सब में 200 हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हो 200 ना हो, इस तरह को सिस्टम हो, तो क्या करोगे, सीधा इसकी वैल्यू लिखोगे यहाँ पर डी डॉलर एज स्क्वायर, ये तो करोगे। यस सर, यस सर, यस। वो चीज यहाँ पर हो रही है, देखो जरा। तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस। लाइब्रेरी बीसीडी में रन करा दी मैंने, रन हो गई लाइब्रेरी बीसीडी, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा, आर्थराइटिस सबको पता ही है, देखिए आर्थराइटिस में व्यू कर लेते हैं, कितने कॉलम देख लो जरा। अब देखिए जरा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो एज का मैं स्क्वायर निकाल के रखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। देखिए कैसे करेंगे, तरीका वही है, देखिए सिंपल सा तरीका। देखो यहाँ पर डेटा फ्रेम क्या है आपका, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस। डॉलर, इसमें मैंने बोला साहब मुझे नया कॉलम बनाना है, स्क्वायर रूट, न्यू 1 कर दो, न्यू 1 कर देता हूँ, चलो एक ऐड कर देता हूँ, न्यू 1, ठीक है। इज इक्वल टू, मैंने बोला कि पुराना कॉलम लो, डॉलर एज ले लो, और इसमें +2 कर दो सब में। ओके क्या हो गया सर, वो नहीं लगा आपने, ब्रैकेट नहीं लगाया थे वहां पे, ऊपर ब्रैकेट में 5 होगा सर, क्या ब्रैकेट में पास होगा यार, स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं सर यहाँ पे। होना तो नहीं चाहिए यार ये, जस्ट अ अरे। मिनट, कॉलम के नेम में प्रॉब्लम है। यार ऐसे होना तो नहीं चाहिए यार ऐसे, है ना। हाँ सर। रिप्लेसमेंट है 0 वैल्यू। एज, अरे यार, एज का ए बढ़ाएगा। तो ये एज का ये बड़ा होगा। यस 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 यस, वही मैं कह रहा हूँ, लफड़ा क्या हो गया यार। एज तो हर वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। 2 प्लस हो जाएगी। देख सकते हो इसे, सब में 2 ऐड हो गया, 63 65 70 72, राइट। इस तरह से कॉलम बना सकते हो, ठीक है। यस इसी तरह से सपोज करो कि मुझे क्या करना है, कि जहाँ एक कॉलम बनाता हूँ मैं आपका, ये डमी मतलब ये मेल फीमेल को, मैं मेल को दिखाना चाहता हूँ 0 से, और फीमेल को दिखाना चाहता हूँ 1 से। कैसे करेंगे जरा बताओ जरा। एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से इंडिकेटर नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया मैंने, या न्यू 2 दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पर मेल को क्या कहता हूँ 0 और इसको क्या कहता हूँ 1, कैसे करेंगे।
सर तो फंक्शन लगा देंगे कि अगर मेल आ रहा है, मेल तो है तो 0 हो जाएगा, है फीमेल हो और जाएगा तो 1। 1 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँ तो कैसा रहेगा, देखो जरा। मैंने बोला डीएफ न्यू नहीं, पहले पहले सिंपल, पहले टेम्परेरी कर लेते हैं, पहले आर्थराइटिस और डॉलर और इसे सेक्स निकलाया, हाँ सर। ठीक है। इक्वल टू मैंने बोला मेल है क्या, राइट। हाँ ये सर। क्या दे देगा, सर ये ट्रू और फॉल्स देगा, ट्रू फॉल्स देगा, पूरे कॉलम का ट्रू और फॉल्स। ठीक है। मुझे क्या करना है, मैंने उल्टा कर दिया, मेल को 0 दिखाना था, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, फीमेल, राइट। जहाँ फीमेल होगी वहां पर ट्रू कर देगा, बाकी ये क्या कर देगा, फॉल्स। फॉल्स। हाँ। अब मैं इसका पूरा मैं ये कर दूं, जरा आप देखना जरा इसको मैंने बोला इसको कन्वर्ट कर दो भाई, एज डॉट न्यूमेरिक, राइट। सर वो है कॉमा है, वो इस डॉट में। हो गया। हाँ Yes. सर। अभी क्या कर देगा, देखो जरा, जो गड़बड़ कर दिया इसने तो। इसमें एक ही फॉल्स। क्या गड़बड़ हुआ है, डॉट न्यूमेरिक। सर ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। जस्ट अ मिनट, नहीं, सही है भैया, कन्वर्ट करना है तो एज डॉट न्यूमेरिक As. होगा ना, एज होगा सर। एज, ठीक है। हाँ वो इस चेक कर रहा था कि हाँ वो चेक कर है रहा था या वो, नहीं है। yes. हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो जरा, हो गया, हाँ सर। यही चाहिए था। अब इसको नए वेरिएबल में दे इसको दो, हम किसी में दे देंगे। यस सर। यस ठीक है। यस। और ये ले लो, अरे यार, यस सर। और तो ही जाओ, तो कर ही लिया आपने ना, यस सर। 0 0 0 जहाँ पर वो 1 1 आ गया, ठीक है। यस सर। यस। चलिए गुड, वेरी गुड, ये कर लिया हम लोगों ने। वही ये इंडिकेटर वेरिएबल बोलते हैं इसको, बेसिकली जो हमने किया है ना, भी वही किया। देखो 40 से 0 वालों को हमने क्या कर दिया, ये कमांड क्या कर रही है बताओ, कौन सी वाली? 187। सर ये वही कर रही है जो भी अपन ने किया, जो भी एज लेस देन 40 है ना, उसको वो 0 मानेगी। 0 कर देगी। यस। और जो बड़े हैं उनको 1 कर देगी। हाँ, और फिर उसको न्यू में असाइन कर देगी। दोबारा से देखो, उल्टा बोल रहे हो तुम लोग यार, एज लेस देन 40, हाँ तो जिसकी एज लेस देन 40 0 करेगी। उसको ट्रू मानेगी। हाँ। कंडीशन किसके लिए सही है, 38 के लिए कंडीशन सही है, 45 के लिए कंडीशन सही है ये। सर 38 के लिए सही है। हाँ तो उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई, ठीक है सर। ठीक है। इसी तरह मान लो बहुत सारे कॉलम बना लिया, मेरे को मन कर रहा है डिलीट कर दूं, कुछ नहीं, जैसे मान लो न्यू 2 को डिलीट करना है, क्या करोगे, अर्थाइटिस डॉलर न्यू 2 इज इक्वल टू नल। हो गया, ठीक है। अब देखो जरा न्यू वन गया नहीं गया, कॉल नेम्स, गया। ठीक है। न्यू इससे न्यू 2 देख लो, न्यू 1 देख लो, गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, बता सकते हो, टैपिंग आई थिंक। ये 195 में क्या हो रहा है, एनी 10 वैल्यू इन बिटवीन 1 to 40। हाँ सर। यस सर। कोई 10 वैल्यू निकाल लो। इसमें आप कह रहे हो कि अगर जो भी वैल्यू आपने रेंडमली निकाली, उसमें जहां भी ग्रेटर देन 20 है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, 20 में। वो सिंपल सा कह रहा है कि मान लो अगर ये 20 वैल्यू है, इसके ऊपर जितनी वैल्यू सबको मिला यहाँ पर खींच के यहाँ ले आओ, इससे ज्यादा मत करो। इसको बोलते हैं कैपिंग, कैपिंग कर दी, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मान लो पर आवर आप मान लो क्या करेंगे, आपको सैलरी दे रहे हो किसी को, आपने डिसाइड कर लिया कितना ही काम कर ले 5,000 से ज्यादा नहीं देंगे। मान लो कोई ऐसी काम कर लिया, मान लो 1 घंटे का 1,000 रुपये दे रहे हो, किसी ने मान लो 70 आवर काम कर लिया, 70,000 हो गया,
एग्जाम में डिसाइड कर लिया 10,000 ज्यादा नहीं दूंगा, 70,000 को किसमें कन्वर्ट करना है, 10,000 में, वो ऐसे हो गया, ठीक है। ओके। ओके सर। इसी तरह नीचे भी कर सकते हैं, नीचे वाली कंडीशन भी ऐसी होगी, राइट। नीचे वाली कंडीशन को बोलेंगे फ्लोरिंग, राइट। यस सर। चलिए अब मैं देखो एक नया कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ, डीप लेयर वाला, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट। यस सर। कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक चीज देखिए जरा, मैं आपको चीज करा रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक सेकंड गाइस, जस्ट 1 मिनट जरा पानी जस्ट पानी का ब्रेक ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। यस सर। यस शिप्रा, कृतिका, यस आर यू सर। देयर? यस ओके। सर। अब देखो मैं एक नया चीज बनाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। ये ऐसा है, अगर आपने कर लिया तो आपका आर प्रोग्रामिंग का आधा ज्यादा पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होना है, ठीक है। सर और लेकिन बहुत, मैं एक चीज बोलूं क्या सर, हाँ, लेकिन मेरे पास बच्चे तो सिर्फ 10 मिनट है, तो क्या आज अपन इसे कवर कर लेंगे? नहीं कुछ तो कवर करेंगे ना, कुछ तो कवर करेंगे। ओके। चलो कुछ नहीं कर रहे, करो, चलो कुछ नहीं कर रहे, एक छोटी चीज देख लो। देखो हमें एक्चुअली में एच फ्लाइट आपका एक डेटा सेट है, इसको यूज करना है, तो उसके वो डेटा सेट आपका एच फ्लाइट लाइब्रेरी के अंदर है। तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज, उसके अंदर इसको फिर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डीप लेयर ऑलरेडी करी रखी है हम लोगों ने, डीप लेयर और ये एच फ्लाइट्स, ओके। तो मुझे एच फ्लाइट्स मैंने लाइब्रेरी इसलिए इंस्टॉल की, तो एच फ्लाइट डेटा सेट आपका वो लाइब्रेरी एच फ्लाइट्स के अंदर है, ठीक है। ओके। इसके अंदर हमने अब हेड देखा, आपका हेड में आपको देखो एक्चुअली में ये डेटा सेट एक एयरपोर्ट का डेटा सेट है। तो भाई उस एयरपोर्ट से पूरे साल में किस दिन कितनी फ्लाइट गई है आपका, और कहाँ कहाँ आपका फ्लाइट गई है, किस सिटी को गई है, और पर्टिकुलर जैसे मान लो दिल्ली गई है, बॉम्बे गई है, तो ऑन एन एवरेज दिल्ली क्या कहते हैं कितने डिले गई है, सब सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें, ठीक है ना। डिपार्चर डिले, अराइवल टाइम, यूनिक कैरियर बेसिकली क्या होता है, ये आपका समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं किसी कंपनी का नाम है आपका, ठीक है ना। ओके सर। ये आपका ये फ्लाइट नंबर होगा, टेल नंबर बेसिकली क्या होता है, कंपनी तो ठीक है, मान लो होंडा सिटी की कार है, उसके अंदर होंडा सिटी के अंदर भी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, वो टेल नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे कार में होते हैं कार नंबर जैसे सर। ठीक है ना, ये तो कंपनी के नाम हो गए, और ये कार का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फ्लाइट का डेटा सेट दे रखा है। अब देखो डेटा सेट में आप देख रहे होगे ना, तो प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है डेटा सेट, अगर आप देखो इसको ढंग से, तो क्या हो गई, क्यों नहीं जा रहा ये, somehow it is got stuck, right? I don't know. So anyhow, तो देखो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, ये देखो कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या है, अगर मैं इसको एक, ये क्या है आपका, ये फंक्शन है, लास्ट बता रहा हूँ, ये आपका tvl._df, ये क्या करता है, ब्यूटीफाई करता है, थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। देखो ये, अब देखिए जितना स्पेस था उसने उतनी दिखा दी, बाकी वो बता रहा है कि भैया इतनी रोज बची हुई है इसके अंदर, और इतने कॉलम बचे हुए हैं दिखाने के लिए। ओके ओके ठीक है, अब मैं दोबारा से रन कराऊंगा, उससे पहले इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ उसको, मैं देखो जरा इसको यहाँ पर ले आता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो दोबारा से रन करता हूँ, देखो तब क्या कहेगा, देखो पहले दोबारा से रन किया, देखो जरा जितना स्पेस मिलेगा उतना ही दिखाएगा, बाकी अब उसने पहले उसने ज्यादा दिखाए थे कॉलम, उसने उसके बाद
2 कम कर दिए, 12 अंडर नॉट डिस्प्लेड में कर दिए, राइट? यस सर, यस ये ब्यूटीफाई करने के लिए आपका केवल। मान लो और कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये कम कर दिया, देखो जरा दोबारा से रन करा के देखते हैं, सेम कमांड, ये देखो जरा 15 कर दी वेरिएबल उसने, ठीक है, यस सर, यस थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कल आप लोग क्या करते हैं, जब भी मतलब कल मिलेंगे ना हम लोग, लेक्चर प्लीज पढ़ के आना, सब Yes, sir. सेटिंग वाला रूल, अब ये ना आर कॉमा कॉलम वाला सब बताया था ना रूल मैंने डेटा फ्रेम के ऊपर, यस सर, सब लोग पढ़ के आना, ठीक है ना? ओके ठीक है सर, सर, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, ओके यस सर, चलिए, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच। समझ में आया नहीं आया? सर ये जो आज आपने पढ़ाया है ये आप ड्राइव में भेज दिया आपने, गूगल ड्राइव, भेज दूंगा अभी मैं, ठीक है ना? है ना? ठीक है, ओके, ओके, समझ में तो आया ना? यस Yes, सर, sir. यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है कुछ? नो नहीं। सर, कोई कुछ? अंकुर, अंकुर, सर वो है नहीं अंकुर। यार यही परेशानी कि मैं क्या, जब तक आप मतलब अटेंशन नहीं दोगे ना, क्यों पता है आप लोग क्या है, सीमा और शिप्रा एंड कृतिका, कृतिका आर यू देयर? यस सर। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, देखो ऑनलाइन में एडवांटेज भी है, ड्रॉबैक भी है अपने। एडवांटेज ये है देखो कि अगर मान लो कोई पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, तो रेगुलरली वो अटेंशन होकर सुनेगा। उसके बाद क्या होता है ऑफलाइन में, कभी कभार मान लो मैंने कोई अच्छा पढ़ाया कितना भी, लेकिन कोई मिस कर दिया, कोई तुमने कोई ध्यान कहीं और चला गया, अगर 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर ध्यान भी कहीं चला जाएगा तो आपको पता है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एडवांटेज इसका, ठीक है ना? यस, यस ठीक है, लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ना से एडवांटेज भी, मान लो किसी को पढ़ना नहीं है तो टीपी सर कौन सा देख रहे हैं, वहां तो बोल देते थे कि भैया कॉपी में लिखो वो करो, यहाँ तो ऑनलाइन ऑन करके चले जाओ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, राइट? यस, दोनों चीजें हैं। चलो, तो मैं व्हाट आई विल डू, आई विल एंड दिस क्लास विद द कमिटमेंट दैट आई विल शेयर दिस फाइल। ओके, यस ओके, थैंक you guys, bye bye. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। And the recording you are going to get through that what is Sakshi. Okay, ओके सर, Sakshi. Okay, thank you. थैंक यू सर। Yeah.